Hello children, today I will explain to you the following topics mentioned in your English grammar book. First is auxiliary verbs, second is modal verbs, third is subject verb agreement, fourth is participles, fifth is gerunds, sixth is finite and non-finite verbs, and last one is infinitives. Okay, let's start our first topic, auxiliary verbs. An auxiliary verb helps the main verb and is also called a helping verb. They help to construct the tense. With auxiliary verbs, you can write sentences in different tenses, moods or voices. अब ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से हैं? am, are, is, was, were, have, has, had. These are the auxiliary verbs. For example, I am reading a really interesting book these days. Meaning, मैं आजकल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रही हूँ. Now tell me, ये कौन से टेंस में है? You see, helping verb am or you can say auxiliary verb. Read ing is using with main verb. तो tell me, कौन से टेंस में है? It is present continuous tense. Means हो रहा है. I am reading a really interesting book these days. तो am जो है auxiliary verb which is helping here with by joining main verb के साथ जुड़ के ये main verb को help कर रहा है. कैसे? I am reading a really interesting book this day. हो सकता है क्या? No, it's not possible. That's why helping verb we are using here. Next example is Preeti has been attending classes at the local college. It is in which tense? A, you see, has or have is used in present perfect tense. Been means, and with the main verb, attend is the main verb, and with main verb we are using here ing, has, been, and with main verb ing is using here. So that's why it is present perfect continuous tense. So Preeti has been attending classes at the local college. तो प्रीति क्या है? जो लोकल कॉलेज जो है अटेंड कर रही है, मीन्स फ्रॉम few times, कुछ समय से वो continuously अटेंड कर रही है. That's why has been attending. तो present में तो you see here has is used with main verb. So that's why has been is the helping verb. Okay, now our next topic is modal verbs. Modal verbs or modals are auxiliary verbs which modify the meaning of a main verb. Modal verb क्या है? वो भी auxiliary verbs भी होते हैं जो कि main verb के meaning को modify करते हैं. Such as can, could have, must have, may, might. तो ये सारे जो है modal verbs है. Always remember children, these modal verbs are used to suggest certainty, possibility, permission, duty, etc. For example, you say type ability मतलब क्षमता. एबिलिटी के लोग क्या यूज करेंगे? कैन और कुड. फॉर एग्जाम्पल, डेविड कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस. मीन्स डेविड 3 लैंग्वेज को बोल सकता है. ही कुड स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच व्हेन ही वाज 5.
वह जब 5 years का था वह फ्रेंच फ्लुएंटली वो बोल सकता था। पर फॉर परमिशन वी यूज कैन, कुड, मे। कैन आई सिट इन दैट चेयर प्लीज? क्या मैं उस चेयर में बैठ सकता हूँ? कुड आई ओपन द विंडो? क्या मैं वह विंडो खोल सकता हूँ? मे आई बोरो योर डिक्शनरी? क्या मैं आपका डिक्शनरी उधारी ले सकता हूँ? मे इज जनरली यूज्ड विथ पोलाइटली। पोलाइटनेस में मे यूज कर सकते हैं जनरली। जो आपके सीनियर होंगे, जो आपके टीचर्स होंगे, तो उसके लिए मे यूज होता है। जनरली यू यूज कैन आई गो फॉर ड्रिंक वाटर? दैट इज नॉट करेक्ट। मे आई गो फॉर ड्रिंक वाटर, तो ये सही। या फिर मे आई गो फॉर टॉयलेट, ये यूज होता है। डोंट यूज कैन in that place. Now next is advice. Advice should. You should visit your dentist at least twice a year. Advice के लिए should. Should use होता है advice के लिए, means करना चाहिए। You should visit your dentist at least twice a year. तुमको 1 year में कम से कम 2 बार डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। यू शुड ट्राई टू लॉस वेट। तुमको अपना वेट लॉस करना चाहिए। एडवाइस, इट इज गिविंग एडवाइस। नाउ obligation, must or have to. I must memorize all of these rules about tense. मुझे करना means मुझ में वो एबिलिटी है और मैं वो कर सकता हूँ। मतलब मुझे जो है टेंस के सारे रूल को याद रखना है, मीन्स करना ही है। ऑब्लिगेशन, ये मुझे करना है। यू हैव टू टेक ऑफ योर शूज बिफोर यू गेट इनटू द मॉस्क। तो मॉस्क के अंदर जाने से पहले मुझे तुमको जो है शूज को उतारना ही है। अब पॉसिबिलिटी के लिए माइट, मे, कुड एंड कैन यूज होता है। इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव। पॉसिबिलिटी हो सकना, ये दिखने में सुंदर है बट ये बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। एबिलिटी यू सी हियर। Okay, now our next topic is subject-verb agreement. A verb must agree with its subject in number and person. If the subject of a verb is singular, the verb should be singular too. यदि आपके verb का subject, आपको subject predicate बता चुकी हूँ, है ना? तो यदि किसी verb का subject singular होगा तो verb भी जो है singular ही होगा। If the subject of a verb is plural, the verb should be plural. For example, the dog runs after the car. You tell me this sentence is of which tense? It is simple present tense. You see here runs. Why runs? Why not run? Again I am telling the dog, third person सिंगुलर नंबर। आई एंड यू को छोड़ के बाकी सभी कुछ होंगे थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एस या ईएस जुड़ता है मेन वर्ब के साथ। दैट्स व्हाई द डॉग इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट्स व्हाई रन इज द मेन वर्ब, दैट्स व्हाई रन्स। तो देखिए ये जो है सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट द डॉग, अबाउट whom we are saying, about dog we are saying, that's why dog is the subject। तो dog के बारे में बता रहे हैं, dog is singular number here, तो that's why जो runs लगा है वो भी singular number में होगा। The dogs run after the guard, here the subject is plural form, तो that's why in the place of runs we use run। When the subject has 2 or more nouns or pronouns connected by and, use a plural verb। यदि आपके सब्जेक्ट में 2 नाउन या प्रोनाउन
आपस में जुड़े हो, एंड से, एंड मतलब मोर देन वन, मीन्स वो प्लूरल फॉर्म में हो गया, तो वर्ब भी जो है वो प्लूरल में होगा। मीरा एंड हर फ्रेंड्स आर एट द फेयर। वाई आर? क्योंकि केवल मीरा नहीं, उसके फ्रेंड भी है, तो मीरा एंड हर फ्रेंड्स मतलब मोर देन वन पर्सन, तो इसके कारण वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में हुआ, नॉट इज, हियर वी यूज आर। Our next rule is when two or more singular nouns or pronouns are connected by or not, use a singular verb. Rohit or his friend is teaching my sister. तो इसमें रूल क्या है? यदि कोई सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन वो और या नॉट से जुड़ा है तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, दोनों में से कोई है या दोनों में से कोई नहीं है, तो वर्ब शुड बी इन सिंगुलर नंबर। रोहित या उसका फ्रेंड जो है वो मेरी सिस्टर को पढ़ा रहा है, तो हियर सब्जेक्ट इज in singular number, that's why here verb is also in singular number. When a compound subject contains both a singular and a plural noun or pronoun joined by or not, the verb should agree with the part of the subject that is closest to it. Either Mukesh or the girls are the bringing snacks. यदि इधर या और से जुड़ा होता है तो उसमें आप देखोगे जो वर्ब के क्लोज में जो सब्जेक्ट होगा या नाउन होगा या नाउन होगा वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है, उस अकॉर्डिंग जो है वर्ब सिंगुलर या प्लूरल में लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ईदर मुकेश और द गर्ल्स आर ब्रिंगिंग स्नैक्स, या तो मुकेश या फिर गर्ल्स। गर्ल्स ये सब्जेक्ट है, तो ये जो है उसके बाद वर्ब है। आप देखिए वर्ब के करीब कौन सा है? गर्ल्स है, नॉट सिंगुलर नंबर, तो इस कारण से आर हुआ। यदि इधर होता है इधर गर्ल्स और मुकेश, तब वो उस जगह में इन दिस प्लेस वी यूज इज, तो इसका बट हियर इधर मुकेश और द गर्ल्स in plural form, so that's why here we use are. Either the girls or Mukesh, here you see is. Why? Mukesh verb के helping verb के करीब है, तो Mukesh is in singular form, so that's why is helping verb is also in singular form. Do not be misled by a phrase that comes between the subject and the verb. लुक फॉर द ट्रू सब्जेक्ट। यदि आप अगर किसी सेंटेंस में फ्रेज है तो उसके पहले सब्जेक्ट आपको देखना है, सिंपली सब्जेक्ट किस में, सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में, उस अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हियर यू से कविता अलोंग विद हर सिस्टर, along with, here you see sister is in plural form, but it is not the subject, it is the phrase, so that's why we are saying about Kavita. So along with her sisters is phrase, we will not say about the phrase, we only see the subject Kavita, and according to Kavita हमको verb लगाना है। Kavita is in singular number, that's why verb will be also in singular form. So that's why here verb is was in singular form. Kavita along with her sister was at the fair. तो कविता अपने सिस्टर के साथ फेयर में थी। तो हमको कविता को देखना है क्योंकि कविता सब्जेक्ट है। किसके बारे में बताया गया था? कविता के बारे में। तो हमको उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। द फॉलोइंग प्रोनाउंस ऑल्सो ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। कुछ प्रोनाउंस है जिसके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा वर्ब, सच एज ईच, ईच वन, ईदर, नीदर,
everyone, everybody, anybody, anyone, nobody, somebody, someone, no one, and none. Each of the children is wearing a different uniform. Here you see each, so that's why is helping word हम लोग इधर यूज किए हैं. Okay, now participle. A participle is a form of a verb that can be used as an adjective or combined with the verb to construct a different verb tense. How many types of participles are there in English? There are two types of participle in English. First is the present participle ends in ing with the main verb. The past participle normally ended in ed and en, but many verbs have irregular past participle. Okay, now first the present participle. For example, I am singing. It shows that it is present continuous tense. Why? Am and singing with main verb ing. So that's why it is present continuous. मैं गाना गा रही हूँ. Present participles have other uses too. The word walking in is performing a different task in each of these sentence. प्रेजेंट पार्टिसिपल का अलग अलग यूज होता है. जैसे वॉकिंग का यूज कई प्रकार से होता है. वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज. इसमें आपको ये पता, वॉकिंग पैदल चलना एक अच्छा एक्सरसाइज है. हियर वॉकिंग इज यूज एज ए सब्जेक्ट. इसमें आपको ये नहीं पता चल रहा है कि वॉकिंग आप चल रहे हो. आपको बोला जा रहा है इन व्हाट मैनर. वॉकिंग वॉकिंग आप वॉकिंग के बारे, चलने के बारे में बता रहे हो. तो दैट्स व्हाई वॉकिंग इज यूज एज ए सब्जेक्ट. तो और नाउन. टुमारो वी विल गो फॉर ए वॉकिंग टूर ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट. तो इधर टूर, कैसे टूर? वॉकिंग टूर. हियर वी यूज वॉकिंग एज एडजेक्टिव. Now the past participle. It is used with forms of have, had, has, will have, had, in this way to form the perfect tense of verbs. For example, I have returned the books. इसमें आपको पता चल रहा है ये intense form. I have returned the books. It is present perfect tense. I have or has we are using here. That's why here we use have. And third form of verb, that's why return. So I have returned the book. So it is in present perfect tense. Past participles can be used as adjectives. एडजेक्टिव के रूप में भी, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव के रूप में हुआ था, इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल्स भी जो है वो एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, कुक्ड फूड शुड बी कंज्यूम्ड एज सून एज पॉसिबल. तो इन विच टाइप ऑफ फूड? कुक्ड फूड. आपको बना हुआ खाना, कुक फूड नहीं कहा जाता है. कुक्ड फूड, बना हुआ खाना, ऑलरेडी कुक्ड. दैट्स व्हाई कुक्ड फूड जो है उसको जितना जल्दी हो सके कंज्यूम कर लेना चाहिए. इधर वर्ब नहीं बोला जा रहा है. कैसा फूड? कुक्ड फूड. एडजेक्टिव, फूड की क्वालिटी बता रहा है, तो कुक्ड फूड. तो दैट्स व्हाई हियर कुक्ड इज नॉट ग्रामर इन पास्ट टेंस. इट इज a past participle and it is used as adjective. Next is past participle can also be used as noun, as in present participle. The injured will need some time to recover. तो इसमें इंज्योर को जो है कुछ टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए. इट इज, वो इंज्योर है, ही इज इंज्योर्ड. तो ही वॉज इंज्योर्ड. तो उस समय जो है ये पास्ट पे होता, बट हियर इट इज इंज्योर्ड. द इंज्योर्ड, इसमें व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है. दैट्स व्हाई इंज्योर्ड इट इज यूज एज नाउन. द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कैन लिंक actions that first occur at the same time, second in which one action occurs immediately after the other. For example, he walked to the door, then he opened it.
आपको इसको ज्वाइन करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? वह डोर के तरफ गया, वह दरवाजा खोला। इसको कैसे करके जोड़ोगे? वॉकिंग टू द डोर, he opened it. One action happens immediately after the other. Gerunds. A gerund has the same form as the present participle, but it is a verbal noun. A gerund can be the subject of a sentence, the object of a verb, or the object of a preposition. For example, jogging is an excellent way to lose weight. ये क्या है? जिरन जॉगिंग, वो एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है? जॉगिंग के बारे में। तो ये एक जिरन है। आई लाइक जॉगिंग, तो मैं जॉगिंग करना पसंद करता हूँ। इन दिस सेंटेंस जॉगिंग इज वर्किंग एज ए वर्ब ऑब्जेक्ट. यू कैन बी पनिश्ड फॉर हिटिंग पीपल. तो कैसा? लोगों को हिटिंग, तुमको पनिश किया जा सकता है कि तुम लोगों को हिट करते हो. तो हियर gerund is working as a preposition object. आपको कैसे करके पता चलेगा कि gerund preposition object के रूप में काम कर रहा है? आप देखना, जनरली जो gerund होगा उसके ठीक पहले preposition होगा. You see in this sentence for is a preposition. Okay, now finite and non-finite verbs. Finite verbs, you see, act as a verb. For example, they got home very late last night. Got इधर जो verb है वो as a verb के रूप में काम कर रहा है. अब act as the main verb of a clause. I live in Germany. इसमें live क्या है? मेन वर्ब. तो फाइनाइट वर्ब क्या है? उसमें लिव है, ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है. आई लिव इन जर्मनी, इट इज अ क्लॉज, उसमें लिव इज अ मेन वर्ब. इंडिकेट पर्सन, नंबर एंड टेंस. फॉर एग्जांपल, शी वाज वेटिंग इन द रूम बिफोर ही केम इन. इसमें जो है आपको टेंस भी बता रहा है. was waiting, वेट कर रहा था, है ना. तो ये इंडिकेट करता है पर्सन को भी, किस पर्सन को, वो ही को वो कर रहा है. तो जिसके कारण was waiting ये टेंस को इंडिकेट क्या कर रहा है. फिर यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस. प्रेजेंट और पास्ट टेंस में यूज होता है. यू प्रोमिस्ड मी द लास्ट टिकट. तुमने मुझे प्रॉमिस किए थे. प्रॉमिस पास्ट टेंस को होता है कि लास्ट टिकट के बारे में मुझे प्रॉमिस किए थे. अपीयर्ड इन डिफरेंट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. जेन जेन ने बोला that he enjoyed painting. enjoyed ये past tense में है. he enjoyed painting. Jane said, it is dependent clause and independent clauses. he enjoyed painting. Non-finite verb do not act as a verb. Non-finite कभी भी verb के रूप में काम नहीं करता. Sailing is my favorite sport. Now चलाना, sailing is not using as a verb. Now चलाना मेरा फेवरेट नौकायान मेरा फेवरेट स्पोर्ट है. Act as noun, adjective and adverb. ये जो है
नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के रूप में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्लीपिंग कैट इज ब्राउन। कैसा कैट? स्लीपिंग कैट, है ना। तो एडजेक्टिव कैट की क्वालिटी बता रहा है, तो ऐसे नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के रूप में नॉन इनफाइनाइट वर्ब काम करता है। फिर आर इन्फिनेटिव्स, जीरंड एंड पार्टिसिपल। ये इन्फिनेटिव हो सकता है, जीरंड हो सकता है एंड पार्टिसिपल्स हो सकता है। आई स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड, है ना, इन्फिनेटिव। मैं स्ट्रगल करता हूँ किसके लिए? अंडरस्टैंड करने के लिए। appear in infinitival, participle and gerund participle clause। इन्फिनेटिवल, पार्टिसिपल और gerund participle clause में ये आता है, kids like to play on computer। वर्किंग इज इन्फिनेटिवल। तो टू प्ले, बच्चे लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर में खेलना पसंद करते हैं। Now, what is the difference between gerund and infinitive? Some verbs can have either an infinitive or a gerund as object। कुछ verb जो है as a ऑब्जेक्ट के रूप में gerund के लिए काम करते हैं या infinitive के लिए काम करते हैं। Some verbs can have a gerund as object but not an infinitive। कुछ verb जो होते हैं gerund के लिए ऑब्जेक्ट होते हैं पर वो infinitive के लिए नहीं होते। एंड सम अदर्स कैन हैव एन इन्फिनेटिव बट नॉट अ gerund। फॉर एग्जाम्पल, gerund के लिए देखिए, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज नेवर इजी। ये gerund है, नया लैंग्वेज को सीखना इजी नहीं है। बट टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज, दैट इज द सेंटेंस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज अंजू डिसलाइक राइटिंग लॉन्ग आंसर। अंजू जो है लॉन्ग आंसर को लिखना पसंद नहीं करती। देखिए इधर जो है ये कंटिन्यूस टेंस नहीं है, ये gerund है ना। तो लिखना ये बता रहा है, तो इट इज gerund। बट अगर इसको ये लिखोगे अंजू डिसलाइक टू राइट लॉन्ग आंसर, द सेंटेंस इज रॉन्ग। डू यू वांट ईटिंग समथिंग, the sentence is totally wrong। Do you want to eat something, it is infinitive। A gerund can be the object of a preposition but an infinitive cannot। एक gerund जो है preposition का object हो सकता है पर एक infinitive नहीं होता है। For example, Ram is excited about learning French। राम जो है एक्साइटेड है फ्रेंच को सीखने में। पर अगर इन्फिनेटिव में राम इज एक्साइटेड अबाउट टू लर्न फ्रेंच, द सेंटेंस इज रॉन्ग। आई एम सॉरी फॉर रीचिंग लेट। देखिए सब में प्रीपोजिशन पहले, अबाउट लर्निंग, अबाउट इज प्रीपोजिशन, फॉर इज प्रीपोजिशन। आई एम सॉरी फॉर रीचिंग लेट, तो मुझे दुख हुआ कि मैं लेट पहुंचा। तो ये है gerund। But if you say I am sorry for to reach late, the sentence is wrong। Okay, now student, I think all of you understood these topics very well।